यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू डूइंग प्रीटी टॉप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन से टॉपिक के बारे में जो एक आम बच्चा उससे बहुत ज़्यादा ही विटनेस करता है अपनी लाइफ के अंदर। एंड दैट इज़ व्हाट स्टडीज़, एजुकेशन, नीट, आईआईटी, ऑल ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स where millions and millions of students try to give them, and a very tiny amount of them succeeds, and the rest of them just end up making a bunch of people a bunch of money. That's all. And what do they get at the end of the day? You're a loser. You can't do anything. You're trying to run away. आप भाग रहे हो, आप पढ़ाई से बच रहे हो, आपका कोई भविष्य नहीं है, and all of these things, right? क्योंकि आपका एक सक्सेस का जो टैग होता है ना, वो एक सिर्फ अकेडमिक मैट्रिक्स से ना बहुत आसानी से ही एक बॉक्स के अंदर बंद करके फेंक दिया जाता है बाय द सोसाइटी, राइट? सो आई वांट टू टॉक अबाउट सम थिंग्स, एंड आई वांट all of my youth who's watching this right now to understand some things, because your parents won't tell you that, because उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें ठीक है. You can't even fight them because their mindset is pure, their mindset is solidified. ठीक है, वही वाली बात है. अगर मैं 100 साल तक आपको यूं बताऊं एक केला दिखा के कि ये सेब है, तो आपके लिए वो सेब ही होगा. कोई अगर इंसान आके आपको यूं बोल देगा कि ये तो सेब नहीं, ये तो केला है, तो आप बोलोगे नहीं, दैट्स एप्पल. Why? Because that's what you have believed, heard, and listened to for 100 over years, right? So it's going to be a very eye-opening video for all of people. Eye-opening. What is eye-opening? Eye-opening video. Yeah, right. तो कुछ उसमें टॉपिक्स है, मैं एक्चुअली शुरू करता हूँ वीडियो को. देखो, आई थिंक नीट, especially NEET, it has become a high pressure exam factory to all of the people who are like in 11th and 12th class. Even in fact 8th class. We got coaching centers in 7th, 8th, pitching their sales to kids and their parents कि आप 8वीं क्लास से नीट की तैयारी शुरू करो, आप 8वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास से कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करो. एंड द थिंग इज कि being good academically, it highly depends on an IQ as well, right? Some people are just made for it. Genetically, even if I'm saying. Some people are made to be high, I would say, rankers. They just have it in them. And it's not that makes them something superior. No, it makes them good. There is no superiority complex. You never know one. Let's say, someone cracks a NEET, right? And some other guy who was not able to crack NEET ends up learning crypto and makes millions in it. So who's the winner now? Right. I'm not saying he won, he lost. It's not about competition. It's about different things. Like people do different things, right? But would you say that वो इंसान फेलियर है जिसने क्रिप्टो करा, एंड वो इंसान सक्सेसफुल जिसने नीट करा? अकॉर्डिंग टू इंडियन पेरेंट्स, आई वुड से कि जब तक वो इंसान जो क्रिप्टो कर रहा है वो क्रेजी अमाउंट्स नहीं ले आता, ही इज़ अ फेलियर बिकॉज उसने नीट नहीं करा. एंड दैट्स द मिसकंसेप्शन दिस सोसाइटी हैज़. ठीक है, या तो आप ये करो वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स आर फोर्स टू बिलीव कि या तो आप पढ़ाई में अच्छे हो वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी, आई वुड से, वियर्ड थिंग टू पुश डाउन टू योर चिल्ड्रन. एंड बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन चीज़ के. मैं सबके बारे में बात करूँगा. आई हैव पॉइंट्स विद मी राइट नाउ, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सुनना एक बार इसको, एंड प्लीज शो दिस वीडियो टू योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू, बिकॉज आई रियली वांट देम टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद योर स्टूडेंट्स एज वेल. Okay. First thing I would say, I'll tell you one thing about this world. Nothing in it is as it appears. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लीक्स या फिर लेट्स से कि पैसों में पेपर होना ये नहीं होता, you have been lied to. You have been lied to. I have met people, I have seen people, I have so many people in my circle, I would say. I won't take the name obviously, but they bought papers from 50 lakhs, 60 lakhs, and the government would, I would say, they would claim कि नहीं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, it's illegal and all. No, it's not illegal. And I genuinely believe legality is just a constraint for people who are, I would say, in a lower class, to keep them blind, to keep them powerless, to keep them, I would say, from, I would say कि उनको बस दबा के रखो, right? उनको बस नीचे दबा के रखो, उनको ऊपर नहीं आने देना, and उनको उनसे मतलब कि रिवॉर्ड, वो नहीं होता कि राइवलरी नहीं छिड़ जाए, इसीलिए दे जस्ट मेक दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि हाँ ये तो होता है. एंड यू नो व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिच पीपल, दे एंड अप बाइंग दीज डिग्रीज, मैन. दे एंड अप बाइंग दीज पेपर्स, एंड व्हाट हैपन्स फॉर दैट गाय हु स्टडिंग 12 hours a day? Imagine this guy who's extremely generationally wealth rich,
एंड कोई उसका कोई लिंक था, इसने नीट का पेपर लिया, एक कंसिडर्ड अमाउंट स्कोर करा एंड ही इज इन द कॉलेज. व्हाट अबाउट दिस गाय जो 12 घंटे पढ़ा, जो एक्चुअल डिजर्व करता था जो सीट, क्या हुआ इसके साथ? नथिंग. समझ रहे हो? तो इतनी डेडिकेशन के साथ अगर घर वाले कह रहे हैं कि भाई पढ़ो, इससे बहुत सक्सेस मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट एंटाई ऑफ दिस, आई एम जस्ट एंटाई ऑफ द सिस्टम एंड द वे इट हैपेंस. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ बच्चों को पढ़ना होता है भाई, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स, दे वांट टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, दे वांट टू बिकम आईआईटीएंस. आई एम ऑल फॉर इट, बट आई एम नॉट with the things that happens to students for those children that don't want to do that. Is it a necessary to do thing for people in life? क्या अगर ये नहीं करा तो you are done, you are good for life, like आप खत्म हो चुके हो? No, right? Absolutely not. समझ रहे हो? So this is one thing. अब जिस बच्चे को करना है और जिसके पास सिर्फ पहुंच गया, तो जिसको करना था उसके लिए तो ये बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन के रह गया ना. 3 साल की दोस्ती, 3 साल का घूमना, 3 साल का एक्सपोजर, सब त्याग के बैठा हुआ था. एंड बूम, एग्जाम लीक, एग्जाम में चीटिंग, समवन बॉट इट. व्हाट इज दिस? ठीक है, सो यू एंड अप बिकमिंग व्हाट? स्टडी सेल. दैट्स ऑल यू डू. आप 6-7 साल आप कमरे में बंद रहते हो, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, आपको बाहर के एक्सपोजर का कुछ आइडिया नहीं. यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड, हाउ पीपल आर, हाउ क्रूअल दिस वर्ल्ड इज. ओके, people would probably use you. You don't have the exposure of having a girlfriend. You don't have the exposure of having friends, social circle, network. You understand nothing about this world. And all you do is just open a book and study. What now? Now what? What do you end up becoming? A study cell. With no real life experience whatsoever. Do you feel me? So that's why I don't like this concept, man. This pure devotion that and this pure hell जिनको बच्चों को go through करना पड़ता है इस चीज़ से, just because their parents wants them to, right? और घर वालों के हिसाब से भी चीज़ें ऐसी होती है कि या तो ये वरना तेरे से कुछ नहीं होगा, तो नालायक है, तेरे से पढ़ाई नहीं होगी. ठीक है, और बच्चे का सेल्फ एस्टीम सिर्फ टूटता है इन 5 साल की प्रिपरेशन में. मेजोरिटी ऑफ द किड्स, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं कर पाते, ऑब्वियसली फ्यू, अ वेरी पिंच, माइन्यूट अमाउंट ऑफ पीपल एंड अप डूइंग दैट. बट आई जेन्युइनली थिंक इन 4-5 सालों में एक बच्चे का सिर्फ एस्टीम टूटता है. ओके, एंड आई टेल यू वन मोर फैक्टर एज वेल, गिव मी अ सेक. इससे होता क्या है ना, आप अंदर से ना भाई प्रॉपरली हॉलो हो चुके होते हो इस टाइम तक. आई वुड से, लेट्स से कि आप 4-5 साल डेडिकेट करिए और आपका नहीं होता, इट्स फाइन, आपका नहीं होता. द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, ओके, you got no zero social life, no skills that could have actually made you something, made you some money. Like this all war is for what? Money. 95% of, यार 100% लोग, आबादी, जनता, अगर आप घर वालों को लाके ऐसे 1 करोड़ रुपए दे दोगे ना, they would keep quiet. Why? Because that's all they want, money. I'll be very honest with you. आपको लगता है घर वाले इसीलिए आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि आप एक अच्छे अकेडमिक बच्चे दिखोगे, या इसीलिए भेज रहे हैं कि फैमिली कंडीशन ठीक हो? मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई वुड से फैमिली कंडीशन ठीक हो. मेजोरिटी आई एम सेइंग. हाँ, कुछ घर वाले होते हैं जिनको बस चाहिए होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या फिर बेटी डॉक्टर बने, ऐसा कुछ. बट आई जेन्युइनली बिलीव अ बिग मेजोरिटी, अ वास्ट मेजोरिटी इज सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू डू ऑल ऑफ दैट, टू गो थ्रू दिस हेल just so that it can improve their societal image and their financial image. Right? और अगर आप यूं बोल दो कि भाई you should not have kids if you can't raise them in a class, तो they get offended for some reason. Not saying आप घर वालों ने आपके लिए करा नहीं है, but putting your child in a pressure, in a constant pressure, कि तेरे को घर संभालना पड़े, तेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी, all of that, that's what majority of Indian parents are. I mean, practically अगर हम सोचें तो ये चलो दिमाग उस टाइम तो नहीं होगा, but I'm just saying in case, let's say if you become parents, if you can't raise your son or a daughter in a way that doesn't puts her or him in a societal pressure, I would say then only have kids, otherwise don't. Do something in your life first. And ये I would say कि ये जो thinking है ये हमारे भारतीय समाज में नहीं आ सकती. ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना घर वालों की कि ये काम बचा हुआ, ये काम बचा हुआ, ये काम बचा हुआ, ये काम बचा हुआ है, वो सारी इकट्ठी करके सिर्फ आपके माथे के ऊपर फेंक के मारी जाती है, जस्ट बिकॉज मैं भड़क में हूं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा लड़का है मेरा, ये कुछ करेगा क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है. दैट्स हाउ इट इज. ठीक है,
तो जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू गेट मैरिड समडे, प्लीज डोंट हैव किड्स इफ यू लाइक दैट, इफ यू लाइक योर पेरेंट्स. आर दे रॉन्ग? Somehow yes. Somehow yes. But can you tell them? No, you can't. Because that's what they have been seeing. They are also, I would say, बेड़ियों में फंसे हुए हैं. They also can't escape this trap, the societal trap. Our parents are slaves of this societal trap. ठीक है? They just give 2F about two things only. The very first one is, I would say, कि आपके बच्चे की financially, I would say, academically recognition कितनी है. पहली चीज है academically recognition in society क्या है, पहली चीज. दूसरी चीज कि आपके बच्चे के पास क्या है, वो क्या कर रहा है, कितने पैसे कमाता है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है? जस्ट बिकॉज सो दैट दे कैन हैव अ सोसाइटली गुड इमेज. बिकॉज अगर आपकी नहीं होगी तो वो फ्लेक्स किसका करेंगे. एंड ये ना हर्ड्स बने हुए हैं 12 लोगों का, 15 लोगों का, सोसाइटी का, पड़ोसियों का, रिलेटिव्स का. दे ऑल कंबाइन एंड ऑल दे डू इज जस्ट मेक अ चाइल्ड्स लाइफ pathetic because they have got inter egos connected with each other. ठीक है? कि भाई उसके नंबर इतने हैं, उसके नंबर, मैं इतना सुपीरियर. एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का गेम चलता है बस ये पूरी सोसाइटी में दैट इज लिंक्ड टू एकेडमिक्स. नाउ व्हाट कम्स इनटू द प्ले? अब मेरी बात सुनना. यहां से फायदा किसको होता है इन चीजों से? आपको नहीं होगा, भूल जाओ. अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड आईक्यू के साथ नहीं हो, या फिर आप अपने आप को एकेडमिकली डेडिकेट नहीं कर सकते हो घंटों के लिए, एंड आप इतने स्मार्ट इनफ नहीं हो, तो यू कैन नॉट क्रैक नीट. आई वुड, for fuck's sake, I have people who are very, very good in studies. They also don't end up cracking NEETs because कितनी ही सीट्स हैं इंडिया के अंदर, कितने बच्चे बैठते हैं, लाखों में. कितनों की सेम रैंक आती होगी, बहुत लोगों की. कौन डिजर्विंग है? कास्ट सिस्टम, इट्स ऑल फक्ड अप. दिस होल सिस्टम इज मेड टू कीप यू डाउन. People don't get it. You don't understand how this world works. This country has everything, that every data of yours, your name, your PAN, your access to your bank, okay, everything is controlled by this country. And what does it gives you? Nothing. This paper leaks, academic pressure, okay, low wages parents working at some normal job. उसके बाद अगर आपसे अच्छे नंबर नहीं आए तो आप खराब हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा इस लाइफ में. You are a zero man. You can't do anything in this life. That's what shit happens. And who actually gets the profit, man? Who actually gets the profit? These coaching centers. This coaching mafia, I would say. Coaching mafia. Okay. These institutes that promises कि हम आपको IIT क्रैक करवा देंगे, हम आपको नीट क्रैक करवा देंगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एलन, आकाश, फिजिक्स वाला एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे रन द इकोसिस्टम. घर वाले लाखों रुपए उड़ाते हैं, और उन लाखों रुपयों को वो बस मान लेते हैं कि मैंने अगर जेब से 2 लाख निकाल दिए तो इसका रिटर्न आना ही आना चाहिए, वरना मेरी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं थी, मेरा बच्चा खराब है. दे वुड स्ट्रेट डिक्लेयर कि मेरा बच्चा खराब है. ठीक है? और घर वालों को ना इन्होंने इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर दी है अपने सेंटर्स की, कि अगर जो इंसान, जो घर वालों को यूं लगता है ना कि हाँ मेरे बेटे को नीट करवाना चाहिए मुझे, अब उनको ना, जिनके पास बजट भी नहीं होता, वो भी लोन लेके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को. ठीक है? कि भाई कोई बात नहीं, अब ये कोचिंग सेंटर में अगर रुमीला का लड़का कोचिंग सेंटर में जा रहा है तो मेरा बेटा तो डिसएडवांटेज में हो जाएगा. वो तो वहाँ पढ़ता है फिजिक्स वाला के वहाँ, वो तो आकाश जाता है, वो तो एलन जाता है. मेरा बच्चा ट्यूशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता. उसको भी हम कोचिंग सेंटर भेजेंगे बिकॉज कोचिंग सेंटर इक्वल्स टू बेटर थिंग फॉर सम रीजन. दैट्स व्हाट पीपल थिंक. ठीक है? दैट्स व्हाट पीपल थिंक. तो उनको ऐसा लगता है कि इफ अ किड डजंट जॉइन अ कोचिंग सेंटर, दे आर ऑलरेडी एट डिसएडवांटेज. एडवांटेज से दूर की बात है, दे आर ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज. ठीक है? तो करोड़ों रुपए की ऑर्गेनाइजेशन है. एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप ये चीज कर पाओ, ठीक है, तो जस्ट टेल मी वन थिंग यार, ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर ओपनिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो पढ़ाई सिखा रहे हैं, आई वुड टेल यू वन थिंग, द ओनर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, you, even if you crack NEET or IIT, you would probably make 0.00001% of what they make.
without cracking NEET or IIT plus. Okay, that's what they do. प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, वैसे तुम बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल का ना मोटिव बस यही रहता है कि अनअवेयर डिसीजंस मत लो यार लाइफ के अंदर, क्योंकि ना ये जवानी की उम्र निकाल लोगे पढ़ाई पढ़ाई करके कॉलेज में या शिकाट के 25 26 27, एक बार तो थप्पड़ आकर लगेगा ना, जब पता चलेगा माँ बाप ही नहीं बचे, कोई 2 टाइम की रोटी खिलाने वाला नहीं बचा, तब का क्या करोगे? ये अखबार में ढूंढते रहोगे, 20,000 के फॉर्म भर लिए, 25,000 के फॉर्म भर लिए, 12 12 घंटे की शिफ्ट मार रहे हो, वहीं पे फिर कॉर्पोरेट लोगों के साथ लगे हुए हो, बात कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पूरी उम्र निकाल दोगे, यूं शादी कर लोगे, फिर तुम्हारे तुम्हारे तुम जैसे पैदा हुए वैसे 2 बच्चे पैदा कर लोगे, सेम प्रेशर उन पर डालोगे, और ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। वी गॉट टू ब्रेक इट, राइट? वी फॉर फर्स्ट हैव टू एनलाइटन आवरसेल्व्स कि एग्जैक्टली इस दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। एंड अब क्या बचता है? ये सारे कोचिंग सेंटर्स क्रेजी पैसा कमा लेते हैं, एंड दे एंजॉय। डू दे थिंक आफ्टर मेकिंग अ turnover of, I would say, crores, 100 crores, 150 crores, do you think they talk about, oh my god, if I had a son, I would make sure he goes for a NEET. मैं अपने बच्चे को प्रेशराइज करूंगा कि तेरे को नीट करनी पड़ेगी, या फिर यू वुड एक्चुअली लिसन टू दिस मैन, आई वुड लेट माई सन डू वट एवर आई वॉन्ट टू। सोच के देखो, इतनी नेटवर्थ वाले आदमी अपने बच्चों को यूं बोलेंगे कि तेरे को नीट करनी पड़ेगी, या फिर यूं बोलेंगे कि तेरे को जो करना है कर? Obviously, second option. Why? Because they have money. What does your parents don't have? Money. If they had it, you would have been raised in a better way. But I can guarantee you this. If you have ever seen people who are rich, just see the way उनके बच्चे कैसे पलते बढ़ते हैं, समझ रहे हो? Why do you think all of these बड़े बड़े मंत्री अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं? Exposure. They know Indian system is rigged. शाहरुख खान का बेटा, why don't they make their child study here? Because they know कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मिडिल क्लास नहीं है, ठीक है। अपना तीसरा पॉइंट आता है ड्रॉपर कल्चर्स वाला। 3 साल 2 साल के ड्रॉप लेके बैठे हैं, 1 साल के ड्रॉप लेके बैठे हैं, ठीक है। कोटा में जा रहे हैं, ठीक है, 12 14 घंटे पढ़ते हैं अंडर प्रेशर में। क्या होता है? मेंटल ब्रेकडाउन्स, ठीक है। फर्स्टली मेंटल ब्रेकडाउन्स, सेल्फ एस्टीम टूटती है, ठीक है। प्रॉपरली जस्ट एंड अप बिकमिंग रैंक प्रोड्यूसिंग मशीन्स, कि रैंक लाओ वरना खत्म, रैंक लाओ वरना खत्म, रैंक लाओ, तुम्हारा अस्तित्व कोई नहीं है, ठीक है। क्या होता है उससे? व्हाट गोज अप? सुसाइड रेट्स। और इस चीज को ना बहुत बहुत हल्के में ले रही है यार सोसाइटी। मेरे को ये चीज समझ नहीं आती। देयर इज अ चाइल्ड लिविंग अंडर प्रेशर, ओके, देयर इज अ चाइल्ड लिविंग अंडर प्रेशर एंड पेरेंट्स आर जस्ट लाइक कोई बात नहीं, भाग रहा है, ये तो तरक्की से भाग रहा है। आर यू फकिंग किडिंग मी? ही इज योर सन, फॉर गॉड सेक, ही इज योर सन। समझ रहे हो? दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। उसका बेटा वहां पे दिमाग खराब करके बैठा है उस कमरे के अंदर, सोच रहा है कि मेरे अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। उस घर वाले भाग रहा है, दूर भाग रहा है, पढ़ नहीं रहा है, नॉट डूइंग एनीथिंग इन हिज लाइफ। पैंचो तुम्हारा बच्चा है वो, कोई वो नहीं है कि हाँ प्रोड्यूस करा और वर्क पे लगा दिया, पैसे कमा के ला। व्हाट? There is a way of raising. We have emotional feelings connected as parents and children, but it's all gone. How? The system. Who to blame? The system. We are all slaves to it. All slaves to it. समझ रहे हो? एंड द थिंग इज कि सबसे क्रेजी पार्ट तो ये है ना कि इस पूरे सर्कस में, यू नो व्हाट मेक्स मनी? द बिग ऑर्गेनाइजेशंस। क्या? कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, तुम्हारे बैंक्स स्टडी लोन्स की वजह से, ठीक है, तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, एंड it's all yeah, every single thing that government tell you to do is a fucking part of ecosystem that ends up making them profitable and you at a loss with zero to no returns. छाप लो ये लाइन अपनी छाती पे, because that's the reality of this world. समझ रहे हो? और ये पता है सबसे
क्रेजी बात क्या है इस चीज की? मेडिकल ड्रीम एंड IITA ड्रीम is often the parents, not the students. You are just, you just keep getting breaking down under pressure, under expectations that you would do something in life. क्या तुमसे पूछ के 2 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने? 2 लाख लगा दिए, कल यहाँ कोचिंग सेंटर में जाना है, पढ़ाई शुरू कर, नीट करना है तेरे को. व्हाट? ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड. ब्रेक थ्रू. Learn marketing, sales, sell something to this world. That's, I would say, the short way of getting rich. Can everyone do it? No. Is there competition in that as well? Yes. But at least you would understand some real life skills. You won't become a puppet throwing here and there, getting fucked here and there, then here, then here, then there. No. I would appreciate a guy who ended up selling, I would say, 10 ebooks to 10 people outside of this country. He's doing much better than you fucking undercooking pressure who has zero stand of his life. Rebel! Or just be a part of the system. That's all I would say. There is no great story without great struggle. A lot of people ask me, मेरे घर वाले नहीं मान रहे. तो तू पढ़ा रहा है फिर, तो consequences भुगत. फायदा क्या हुआ? घर वाले नहीं मान रहे और तू यहाँ पे फुल स्टॉप अगर मानता है कि लग चुका है तो लग चुका है. यू हैव टू विटनेस द कॉन्सिक्वेंसेज देन. यू हैव टू लेट योर लाइफ बी इन अ ड्रेन. 6 years of drain where you could have understood life, you could have understood marketing, networking, found ways of making money, could have met some girls, could have had a life you always wanted to, had a relationship, a good physique, do all of these things. You know, I'm not saying quit studying. I'm just saying don't if you are just frowned upon onto this concept. If you want to do it, then it's fine. Otherwise, have the balls to rebel. I'm going to see you in the next video. Then peace. Dhyan rakho. Take care.